Hi, good morning everyone. Welcome to our new chapter, chapter 14, compound interest. You all already know about what is a simple interest. Simple interest means how many number of years are there. Okay, मैन इन्वेस्ट 10,000 फॉर 2 ईयर. अगर एक आदमी 2,000 ये के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है या किसी को 10,000 रुपीज़ दे रहा है, रेट ऑफ 10% पर एन. रेट ऑफ 10% मीन 10% इंक्रीमेंट विल बी देयर. उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें 10% इंक्रीमेंट होगी. तो यहाँ पे ये निकालना है कि कितनी इंक्रीमेंट होगी 10% के हिसाब से इन 2 ईयर्स. कितनी इंक्रीमेंट उसमें ऐड होगी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जो उसका टोटल अमाउंट बन जाएगा. ओके, तो जब सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म आती है तो हम जैसे फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरा पास जो इंटरेस्ट आ गया दैट इज 1000 मीन्स 10%. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर. 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या बना 1000, 1000, 2000. ओके, अगर मैं यही कंपाउंड इंटरेस्ट के वे से कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे इंटरेस्ट फॉर्मूला तो सेम है इंटरेस्ट का, डिफरेंस क्या है कैलकुलेशन में डिफरेंस है. जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर मुझे 1000 मिला और फर्स्ट ईयर का अमाउंट, अब जब नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा तो फर्स्ट ईयर में जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड होके न्यू प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा. अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10,000 प्लस 1,000 में 11,000. दैट मीन्स अगर मुझे सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो मेरा न्यू प्रिंसिपल बनेगा दैट इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड दैट इज 11,000. ओके, रेट फिक्स रहेगा. 10% इंक्रीमेंट ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी. जो रेट का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट में ही ऑलवेज इंक्रीमेंट होगी. और एनम का मतलब है कि एक साल के लिए ये जो आपको रेट दिया 10% दैट इज फॉर द 1 ईयर. ओके, और 1 ईयर में उसको 10% इंक्रीमेंट हो रही है तो 2 ईयर्स में 10% और ओरिजिनल अमाउंट में ही. सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेशन होती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रीवियस अमाउंट में कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की. तो ईयर 1000 इंटरेस्ट ऐड हुआ 1100 न्यू प्रिंसिपल, then 1210 for the next year principal. So that is the process of the compound interest. Now I'm discussing some questions here of your tryout questions of 14.2 exercise. 14.1 is not in your syllabus, so we'll start it from 14.2 compound interest. Calculate the amount and the compound interest on rupees 5,000 for 3 year at 11% per annum. So there are two ways to find. There is nothing written that you have to use the formula or not formula. So first I will calculate this question 3 years at 11% per annum. So there, if 3 years is there, so I can go with 3 cases. Like here case 1. First I can go with the case 1. Case 1 means for the first year. So each and every case consider as your first year means case 1, second year means case 2 and third year means case 3. Okay, now first I will calculate for the interest for the first year. So I consider that as I1 in the short form. I1 I have to calculate. Principal 1 is my original principal given in my question 5,000 rupees, and here each and every year I will calculate time is equal to 1 year because 3 cases mean 3 years. I divided the cases into different years. So first I will calculate interest 1. So my formula is principal 1 into rate. Rate is fixed for every year. So rate is fixed in your question is 11% per annum. So rate 1, rate is 11% per annum. Per annum you must write there. Per annum means rate is calculated according to the 1 year. Principal 1, first principal for the first year, rate and time. Time is because I am calculating according to the fixed time as 1 year, so I consider as time as 1 year. So here then divide by 100. Then principal 1 is 5,000 into rate as 11, time for 1 year by 100. After calculation I will get interest is 550 rupees. 550 rupees is my interest. Now I have to find the interest amount for the first year, that is principal for the first year plus interest for the first year, that is 5,000
plus 550, that is 5550 rupees. That is the amount for the first year, and this amount of the first year become the principal for the next year. Now case 2. So that is amount of first year is equal to principal for the second year, that is 5550 rupees. Now rate and interest is same in each and every case. Now I have to find the interest to same, principal to into rate into time by 100, that is 5550 into 11 into 1 by 100. After calculation I will get 610.5 rupees. So that is interest 2. Now I have to find the amount for the second year. Principal for the second year plus interest for the second year is 5550 plus 610.5. So that give me 6160.5 rupees. Next is that amount of the second year become the principal for the third year, because total in my question there is a 3 year. I am going to calculate according to the 3 years. Now principal for the third year is equal to amount for the second year, that is 6160.5 rupees. And the rate and time is same for the third year. Now amount interest for the third year is 6160.5 into 1 into 11 by 100 gives me 677.65 rupees. Now amount for the third year, that is final amount person received after 3 years, that is principal for the third year plus interest for the third year, 6160.5 plus 677.65 minus principal for the first year, so that is 6838.5 minus 5000, so that gives you 1838.15 rupees. If you want to check whether your calculation is correct or not, you can just add like first year interest 550, second year interest 610.5 and third year interest 677.65. when you add 3 years interest, that gives you exactly same amount here after which I got in the formula after subtraction. So that is your first question. Now in my second question, here in this question there is a 2 parts of the question. First part, you have simple interest is given, time is given 4 years and 6% increment in the original amount is there. That means rate interest means it's 6% increment in the original amount. Principal is not given to you in the first part of the question, like from this to this statement you have to find the principal. In the second part of the question you have to use the same principal, time for 4 years, rate is 6%. You have to calculate what is the compound interest. In that case, if we go with the simple interest, we got the simple interest, total simple interest as 2400 on principal amount. So first you have to find the principal for the second year plus interest for the second year. 10,600 plus 636 gave me 11,236 rupees. Now case third means third year, interest for the third year. Now amount for the second year become the principal for the third year. Now third year principal is 11,236 rupees. Now interest for the third year is 11,236 into 1 into 6 by 100. After calculation give me 674.16 rupees as my interest for the third year. Now amount for the third year is 11,236 plus 674.16 rupees. Now here that amount for the third year become the principal for the fourth year. So here when we add this 11,236 plus 674.16 give me 11,910.16 rupees. That is amount for the third year. Now case
Case 4 means you have to calculate for the 4th year. So here amount of the 3rd year become the principal for the 4th year 11,910.16 rupees. So when you calculate interest for the 4th year is equal to 11,900 minus principal for the 1st year. So after subtraction 12,624.7696 is the final amount after the 4 year, and original principal was 10,000 rupees. When you subtract this one, you get 2,624.7696, and the roundabout value is 2624.77 rupees is the total interest calculated in the 4th year. Sometime what happen when you are going to do this type of question, like here year 1, year 2, year 3, year 4, that means increment is added in the previous year amount. Every previous year amount fixed type of increment is added in that. Okay, so this type of question when we go without the formula, so that give you bigger calculation and this become lengthy, so much lengthy. So instead of doing such a lengthy method, we have a formula is there. Suppose doesn't matter because that is for the 4 year, but what will you do when it is 5 year, when it is 6 year, when it is more year? So that means case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. So that become your question is too much lengthy. To reduce this such a length, we have a formula of such type of question. So according to that, if I have a find the compound interest, अगर मुझे compound interest calculate करना है, मेरे पास principal amount है 10,000 for 4 years at 7% per annum. 7% per annum means 7% every year उसमें interest add हो रहा है, 7% amount original amount का add हो रहा है, प्रीवियस अमाउंट जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओरिजिनल अमाउंट बन जाएगा. तो 4 इयर्स. तो इस तरह से जब इंक्रीमेंट हो रही है 1 by 1, तो अगर मैं केस 1 केस 2 अगर 4 इयर्स है तो 4 केसेस आ जाएंगे ई फॉर ईच एंड एवरी ईयर. टू रिड्यूस दिस सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन, सो वी हैव अ formula. We have a formula is that instead of doing such a long ultimately basic formula is you have to find the amount, and if you are going to find the compound interest, that is amount minus principal. So you have to subtract original principal from the amount. Okay, so that is a basics compound interest formula. But now what is the amount? Amount is that amount how much is incremented, increment in the original amount. That means principal, okay, principal plus principal if you are going to add, so that means principal of whatever rate percent is there, rate percent of principal, what is increment, so that is increment like 7%. 7% principal में increment होगी. but अगर मैं यहाँ पे principal common ले लूँ यहाँ से, तो मेरा वही कंडीशन जो आपका पीछे इंक्रीमेंट का फॉर्मूला था r%, दैट इज r by 100. तो ये आपका बेसिकली एक अमाउंट का फॉर्मूला बन गया. ओके, अब यहाँ पे है कि 1 + r by 100. पीछे आप क्या करते थे कि डिस्काउंट में क्या किया था कि आपके पास जो मार्क प्राइस, सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा मार्क प्राइस है, यहाँ पे मेरा डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते थे. ओके, तो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट होता था तो क्या करते थे, और एडेड होता जाता था. ओके, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है 1 + r, ये तो मेरा एक बेसिक्स फॉर्मूला आ गया, प्रिंसिपल इंटू 1 + r by 100. तो बार बार मुझे प्रिंसिपल प्लस r% ऑफ प्रिंसिपल लिखने की बजाय कि उसी में जो मुझे रेट की इंक्रीमेंट करनी है, आई हैव यूज द शॉर्ट फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r by 100. ओके, तो अगर इसकी पावर 1 होगी तो दैट मीन्स एक ही बार जुड़ा है इंटरेस्ट. अगर इसकी पावर 2 होगी दैट मीन्स 2 टाइम ओरिजिनल में जुड़ा है. 2 टाइम जुड़ने का मीन्स है कि पहले कैलकुलेट हुआ, उसी में 1 + r by 100 फिर से जुड़ गया. जैसे 1 आ गया, 1 + r by 100, ओके, फॉर 2 इयर्स. तो अगर 4 इयर्स के लिए होगा तो 1 + r by 100, अगेन 1 ईयर
1 प्लस आर बाई 100 अगेन 1 ईयर, 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी. सो दैट मीन्स A is amount is equal to principal 1 plus r by 100 raised to power 1 plus 1 plus 1 4. That means 4 ईयर. यहाँ पे क्या आ गया कि 4 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए रेट की इंक्रीमेंट हुई प्रिंसिपल में, वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा. तो जैसे 4 ईयर के लिए हुई तो 4 ईयर मीन्स सक्सेसिव इंटरेस्ट या सक्सेसिव इंक्रीमेंट. सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला एज इट इज सेम था जैसे आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला था. फर्स्ट ईयर में भी रेट फिक्स है, सेकेंड ईयर में भी रेट फिक्स है, थर्ड ईयर में भी फिक्स है, फोर्थ ईयर में फिक्स है. जब सभी ईयर्स में रेट फिक्स्ड है तो हम टोटल कॉमन पावर 4 ही ले लेते हैं. तो टाइम यहाँ पे क्या बन गया, पावर में. किस पे कैलकुलेट हुआ, प्रिंसिपल में. तो एक तरह से सेम ही है जैसे आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रही है तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है. यहाँ पे मार्क प्राइस की जगह प्रिंसिपल ने ले ली, और जो आपका इंक्रीमेंट होता है या डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट की जगह रेट ने ले ली. वहाँ पे डिस्काउंट डिक्रीज़ हो रहा था तो हम माइनस यूज़ करते हैं, कोई अगर अमाउंट इंक्रीज़ होता तो हम प्लस यूज़ करते हैं. अल्टीमेटली फॉर्मूला का पर्पस यही है कि आपकी फॉर्म चेंज हो गई. ओके, देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टाइम. टाइम यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने ईयर के लिए उसमें एक ओरिजिनल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है. तो जब इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली इसी के अंडर ही आ जाता है कि पिछले साल का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली इसी में कैलकुलेट हो जाता है. तो उसमें हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ये था अमाउंट, सेकंड ईयर में जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर बन गया. तो वो लेंथी प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला. अब जैसे अमाउंट है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100. तो ये फॉर्मूले में जैसे मैंने यहाँ पे 4 ईयर की एग्जाम्पल ली थी तो मेरा एक प्रॉपर फॉर्मूला बन गया अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेस्ट टू पावर टाइम. ये टाइम ये बता रहा है कि कितने टाइम के लिए इसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ ओरिजिनल प्रिंसिपल में. ओके, अब जैसे यही क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज. 10,000 मीन प्रिंसिपल, टाइम इज 4 ईयर, 7% मीन्स पर एनम. यहाँ पे रेट 7%, 7 बाई 100, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे आर परसेंट ही लिखा जाता है. परसेंटेज को चेंज करके मैंने डायरेक्टली 100 में चेंज कर दिया. तो यहाँ पे मैं 7 ही कंसिडर करूँगी. बट अगर आप इसको ऐसे भी कंसिडर करोगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंट एंड रेस्ट टू पावर टाइम. टाइमिंग कितने ईयर्स के लिए प्रिंसिपल में इंक्रीमेंट हो रही है, देन आर परसेंटेज सेम है 7%. अगर आप 7% भी लिखोगे तो परसेंटेज को चेंज करके 100 ही लिखा जाएगा. तो बेटर है हम इसी फॉर्मूले में लिखें. तो यहाँ पे अमाउंट हमें पहले कैलकुलेट करना है, जैसे ही अमाउंट आ गया प्रिंसिपल उसमें से माइनस कर देना. पर ये फॉर्मूले को हम दो तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. एक तो है कि डायरेक्ट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज़, 1 प्लस 7% और टाइम है 4 ईयर्स. 4 ईयर्स के लिए इंक्रीमेंट हो रही है. अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 7 बाई 100 रेस्ट टू पावर 4. अब यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने इसको कैलकुलेट करना है, एलसीएम लेना है. 10,000 100 प्लस 7 बाई 100 रेस्ट टू पावर 4. ये आपका 107 आ गया. 4 टाइम्स ये टर्म सारी मल्टीप्लाई होगी. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 107 बाई 100 इंटू 107 बाई 100, क्योंकि रेस्ट टू पावर 4 थी, यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 टाइम दिस वन, 107 बाई 100. In this type of question, calculation is bigger one, only calculation taking the time, but in all type of question you have to apply the formula here. So here when you calculate this one, so this is 10,000 multiplied by 131079601 and divide by how many zeros are there, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, if you cut this 4 zeros with 4 0, only 4 zeros is left. So what will be my answer? 1
4107. If 4 zeros is there, 4 digit will be left after decimal. So 9601, 13107.9601 divide by 10,000. So divide by 10,000. Sorry, I already put it here. So that is the amount because I put already in the decimal. Now you have to find the compound interest is amount minus principal. Amount is 13,107.9601 minus 10,000. So that is amount minus principal. So that is 10,000. Give me 3,107.9601 rupees is my compound interest. So instead of lengthy method, you have to use this formula to calculate the compound interest. So I have another question in this case. So that is find the compound interest on rupees 4,500 at 10% per annum. Here for 5 years. Time is given for 5 years. Rate is 10%. Compound interest you have to calculate upon the principal. So I apply first same formula here, amount formula. Amount is equal to principal into 1 plus r by 100 raised to power n. We generally write it n. N represent for the time. Here number of years. So I just replace the values here. Principal is 4,500. Rate is 10% given me. So that is R value is 10 and N value is 5 years given in my question. So this is 5 years, this is 10% and this is principal amount. Now you have to find the compounded annually. If it is written compounded annually, that means you have to calculate according to 1 year. So that will be calculate 1 year and rate is according to the 1 year. So when you take the LCM of this one, so that is 100 plus 10 by 100 raised to power 5. You have to multiply this by 5 times. 4,500 into 110 by 100. 110 by 100 into 110 by 100. 110 by 100 into 110 by 100. Then after calculation you will get here 1 2 3 4 5 6 7 7 0 will be cancelled here, so 3 0 will be left. 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5 6 7 7 0 will be cancelled. So what is left? 11 1 multiply by 5 times give me 161051 by 1000. So after calculation give me 7247.295. So that is my amount. Now I have to calculate the compound interest. That is amount minus principal. Amount I have 7247.295 minus 4500 gives me 2747.295. When I take the roundabout value, 2747.30 rupees is my the required answer. Now next is Anush deposit a sum of 38,000 in a branch of International Bank for 2 years compounded half yearly. अब यहाँ पे आ गया half yearly at 10%. So sum means this is principal, this is 10% and 2 years. So these are the 4 things is given in my question. 10% is according to the per annum. अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करना होता था. यहाँ पे हाफ ईयरली मीन्स कि जब आपका मान लो ये एक पूरा ईयर है, यहाँ पे एक ईयर जा रहा है, ईयर में आपके पास कितनी है 12 मंथ्स आपको गिवन है. ओके, तो अगर 12 मंथ्स का अगर हाफ करोगे तो ये जो आपका रेट है ये भी हाफ हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स r by 2%. ओके, ये 6 मंथ और ये आपका आ गया 12 मंथ्स. अब हाफ ईयरली का मीन्स है कि इस हाफ ईयरली को मैंने 1 ईयर कंसिडर करके चलना है और ये वाला हाफ ईयर नेक्स्ट वाला हाफ ईयर आपका सेकेंड हाफ ईयर कंसिडर होगा.
सेकेंड हाफ ईयर मीन्स 1 ईयर। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरा है r/2, क्योंकि जब आपने यहाँ पे किया था तो ये 1 ईयर के अकॉर्डिंग टू था, कि जैसे मेरा एक पूरा है 1 से लेके 12 मंथ है, तो पूरे 12 मंथ के लिए ही मेरा जो इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट हो रहा था r%। तो 1 ईयर मीन 12 मंथ्स मीन 1 ईयर। तो हम एक 12 मंथ को 1 ईयर की कैटेगरी में या 1 कंप्लीट यूनिट की कैटेगरी में रख के चल रहे थे, पर अब मेरा यहाँ पे हाफ ईयरली आ गया। तो हाफ ईयरली का मतलब है कि 1 से लेके जो 12 मंथ है, तो 1 से लेके 6 मंथ तक के लिए रेट भी हाफ होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये जो है आपको रेट पर एनम गिवन है, सो दैट इज r%। ओके, जब r% 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा 6 and 6 मंथ, तो रेट भी हाफ हो जाएगा। ओके, अब जब मैं हाफ ईयरली रेट के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग टू क्या होगा, जब हाफ ईयरली रेट के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट किया जाता है। अब टाइम यहाँ पे 1 यूनिट मैंने किसको माना, 6 मंथ को। ओके, सेकेंड यूनिट किसको माना, नेक्स्ट 6 मंथ को। दैट मीन्स अगर मैं रेट को हाफ लूँगी तो मेरा ऊपर टाइम क्या काउंट होगा, उसका 2 टाइम्स। तो अगर मैं हाफ ईयरली काउंट करूँगी या सिंपल वे से कैलकुलेट कर, अगर मेरा रेट हाफ होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर डबल, जो एन की वैल्यू है डबल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/2, क्योंकि रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, r/2%, एंड अब यहाँ पे एक यूनिट किसको माना था, हाफ रेट को मैंने 1 यूनिट माना, 6 मंथ 1 यूनिट आ गया, 6 to 12 मंथ क्या आ गया मेरा, सेकेंड यूनिट। और जैसे ही मेरा ये सेकेंड यूनिट आया, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो n की वैल्यू थी, जहाँ पे जो हम n मीन्स 1 यूनिट। ओके, तो ये कितने यूनिट आ गए, n, फर्स्ट n 6 मंथ, एक्चुअली n मंथ के लिए काउंट होता है, तो यहाँ पे 12 मंथ का मतलब था कि 1 यूनिट, तो n की वैल्यू क्या आ गई थी, 1। यहाँ पे अगर 5 ईयर्स था, दैट मीन 12 मंथ 5 ईयर्स के लिए काउंट हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 5 यूनिट्स बन गए। तो यहाँ पे टोटल यूनिट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ, n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 2n लिख सकते हैं, कि जो भी n मीन्स 1 यूनिट, और जितने यूनिट होंगे तो यहाँ पे 2n कि उतना डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड बाई 2 होगा तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बार बार इसको यहाँ पे r/2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको टॉप में ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। r/2%, अगर रेट हाफ होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू पहले आपको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई की, अमाउंट था, अमाउंट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 38,000 जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। ओके, 1 प्लस, अब आर की वैल्यू क्या आती, 10/2%, परसेंट किस में चेंज हुआ, 100 में। ओके, और 2n, टाइम डबल हो गया, क्योंकि रेट हाफ होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, डबल, यूनिट कितने हो जाएंगे, डबल। इसी तरह से अगर रेट 4 होगा, अगर इसी 12 मंथ को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, अगर रेट डिवाइड बाय 4 होगा तो यहाँ पे भी यूनिट 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1 ईयर को 4 यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया, तो इसलिए 4n लिखा गया। ओके, तो यहाँ पे जब आपने कैलकुलेट किया 2n, n क्या है, n मीन्स 1 यूनिट, तो 2 टाइम्स n मीन 2n। अब यहाँ पे टोटल कितना लिखा हुआ है, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब है कि कितने मंथ आ गए, फर्स्ट ईयर में तो कितने आ गए, 12 मंथ मीन्स 1 यूनिट 2 यूनिट। अगर मेरा एक और ईयर आ जाएगा तो 2 यूनिट और ऐड हो जाएंगे, तो कितने यूनिट हुए, n की वैल्यू 1 होगी, 1 2 3 4, तो जो यहाँ पे n की वैल्यू होगी, तो ये जो 2 ईयर में कितने यूनिट्स आते हैं वो आपने काउंट करने, कि 2 ईयर्स में 6 मंथ को जो आपने 1 यूनिट माना था वो कितना आ रहा है। तो अगर आपको फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सीधा यहाँ पे जो 2 ईयर्स के वन है वो n की वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ 2 × 10। या हम सिंपल वे से माइंड में रख सकते हैं, अगर मेरा रेट हाफ होगा, ये तो पर एनम है,
हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, अगर मैं रेट हाफ करूँगी तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर्स में मैंने 6 मंथ को 1 यूनिट माना, 1 + 1 1 + 1। ओके, तो यहाँ पे 5 ईयर्स भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ईयर्स को तो कैलकुलेट करना ईजी है कि 2 ईयर्स में जब हाफ ईयरली को 1 यूनिट मानेंगे तो 1 2 3 4 ये आपके, क्योंकि एक ईयर को 2 स्लॉट्स 2 यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो 3 ईयर्स किस यूनिट्स में हो जाएगा, 6 यूनिट्स में। ओके, 4 ईयर्स किस में हो जाएगा, 8 यूनिट्स में। अल्टीमेटली हाफ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, कि जितना यहाँ पे ईयर होगा उतना ही वो डबल हो जाएगा। तो 2 × 2 4, तो अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 0 कैलकुलेट हुई तो यहाँ पे आपका बन गया 21/20 और यहाँ पे 4 38,000 एंड जब एलसीएम लिया 21/20 then raised to power 4, that will be multiplied by 4 times, then amount is equal to 38,000 multiplied by 21/20 into 21/20 into 21/20 into 21/20, that you have to multiply 4 times. When after multiplication, so you will get the answer 46,189.2375 रुपीज़। आप इसको राउंड अबाउट भी कर सकते हो, 46,189.24 रुपीज़। सो दैट इज़ राउंड अबाउट वैल्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल वही है, जो भी आपका अमाउंट निकला प्रिंसिपल विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 46,189.24 minus principal is given in your question very beginning 38,000. So when you subtract that one, you will get 8,189.24 rupees is your interest. So that is a compound interest. I will tell you again. जब आपने 1 ईयर के लिए कैलकुलेट किया था तो 1 ईयर के लिए आपने 12 मंथ को 1 यूनिट का नाम दिया था, तो दैट मीन्स आर परसेंट इज कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द 1 यूनिट। ओके, जब हाफ ईयरली हो गया तो जो आपके 12 मंथ से वो 2 यूनिट में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, जो यहाँ पे टाइम, कई बार यहाँ पे मंथ भी दिया हो सकता है, तो मंथ को भी आपने पहले ईयर में कैलकुलेट करना है। तो दैट मीन्स एक ईयर को जब आपने 2 यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 2 यूनिट्स का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी ईयर्स होंगे उनका डबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है आपका फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे आपका सेकेंड यूनिट, तो 1 ईयर मीन्स 2 यूनिट, तो इसीलिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ईयर को। तो n मीन्स टोटल 1 ईयर, और 1 ईयर में कितने स्लॉट्स हुए, 2 यूनिट। 2 ईयर्स में कितने स्लॉट हुए, 4 ईयर्स। 3 ईयर्स में कितने स्लॉट हुए, 6 ईयर। दैट मीन्स जो एक ईयर अगर 2 स्लॉट में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 ईयर कितने स्लॉट में कन्वर्ट होगा, 4 ईयर्स में। तो 2 ईयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 × 2। दैट्स व्हाई वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला r/2% रेज़्ड टू पावर 2n की रेट तो हाफ हो जाएगा, एक यूनिट में रेट हाफ यूज़ हो रहा है, तो एक यूनिट जो पूरा का पूरा ईयर था दैट विल डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट। तो यहाँ पे ये इसीलिए 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 ई, n मीन्स 1 यूनिट मीन्स 1 ईयर, 1 ईयर को 2 यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया। और रेट भी उसके अकॉर्डिंग टू हाफ आ गया। नेक्स्ट इज क्वार्टरली। अगर इसी 1 से लेके 12 तक जो आपके ये मंथ्स हैं, 1 से लेके 12 तक, अगर मैं इसको 4 स्लॉट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 स्लॉट्स मीन्स पहला जो स्लॉट है आपका वो जाएगा 3 मंथ, 1 से लेके 3 मंथ, 3 से 6 मंथ, 6 से लेके 9 मंथ्स, तो ये 4 मंथ्स में कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स एक पूरे ईयर को n की वैल्यू को आपने 4 स्लॉट्स में कन्वर्ट किया। उसके अकॉर्डिंग टू पहले वाला जो है, अगर ये पूरा का पूरा r% है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, r/4%, r/4%, r/4%। दैट मीन्स अगर ये आपका 1 यूनिट आ गया तो 1 यूनिट अगर रेट 1/4 हो गया तो
दैट मीन्स द फर्स्ट यूनिट, और एक पूरा का पूरा ईयर 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. दैट मीन्स 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट. दैट मीन्स एक ईयर को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, ईयर में आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो भी ईयर होगा उसको 4 से डिवाइड करना है. मीन्स हर एक ईयर को आपने 4 यूनिट्स में कन्वर्ट किया. तो उसके अकॉर्डिंग टू आपका अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 4%. दैट मीन्स अब रेट की फोर्थ पार्ट की इंक्रीमेंट हो रही है. कितने ईयर्स के लिए? 4n. 4n पावर में क्या हो जाएगा? 4n का मतलब है कि आपने एक ईयर को कितने यूनिट्स में कन्वर्ट किया? 4 यूनिट में. तो n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 9 मंथ है तो 9 मंथ को पहले आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज योर n वैल्यू. दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4. So what will be you do in this question? When you solve this question, you have principal amount is given 5,500. Rate is 9% per annum. Per annum is given to you, that you will be apply here r by 4%, and in 9 month first you have to convert into the year. That is your n value. So here time will be that is represent n. सो दैट इज 9 मंथ. 9 मंथ को पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है? ईयर में. सो 9/12 ईयर, दैट इज 3/4 पार्ट ऑफ द ईयर. यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, एक ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, टोटल 4 मार्क में से 9 कहाँ पे आता है? 1 2 3, 3 पार्ट. दैट इज आउट ऑफ 4 पार्ट्स देयर विल बी 3 पार्ट्स in the year that represent as 9 month. Now you have to calculate the amount according to this formula. Rate you have to given 9%. Then according to the formula, principal is given 5,500. 1 plus r. Rate percent is given 9%. 9 by 4%. Then 4 into n. n की वैल्यू निकली है 3/4 ईयर. जो भी यहाँ पे ईयर की वैल्यू निकली, दैट इज योर एन वैल्यू. कि क्या आपको यहाँ पे ईयर को कन्वर्ट करना है, और ईयर के अगर 4 स्लॉट्स कर दिए जाए तो वो कितने बनेंगे? दैट इज 5,500. दैट इज 1 प्लस 9/400. 9/400. देन 4 will be cancelled, only 3 is left. So now you have to take the LCM. 400 plus 9/400 raised to power 3. Then amount is equal to 5,500. 409 will be multiplied by 3 times. 409/400 into 409/400. Then after calculation, 2 zeros will be cancelled. So 64 by 10,000 is left in the denominator. 55 into 409 will multiply 3 times, give you 68417929. And 64 into 1000 with 4 zeros. So when you divide this one, so that gives you 5879.67 rupees. But when you calculate first numerator with this zeros also, so when you just multiply this one, so that gives you 37629866095 by 64 into 10,000. So after this you will get the same answer after dividing. 5879.67 rupees as my amount. Now you have to calculate the compound interest is not asked in your question. They just tell that find the amount receiving by him. That is total amount received by the person. That is 5,879.67. That is more than the original value.